if I go in a closed universe, what will happen? It will all merge together. Sometime it has to. That was Penrose's conjecture, and Wheeler and I actually demonstrated it by constructing hypersurfaces of constant mean extrinsic curvature, York time. And so as you go to the end, that's the k going to infinity, the two merge. That's the answer. So local and global are not separate when it's a closed universe. If it is not a closed universe, as I said, and an open universe, Penrose's argument was that as you go to a compactified time, whatever that means, at the end of that it would go that way. Now, nowadays you've got the board over there, and I don't know whether there's a marker to use with it, where I can then explain that point. If we get it right here, I can come down. And thank you. So here, if you have well, actually, is there also an eraser? I think I'll use the other picture to put it better. There's a black hole, and there's the singularity going there. And there's the big crunch all the way there. But if it's a closed universe, it would go that way. Now, I could take hypersurfaces of constant mean extrinsic curvature, and they would go like this. Now here, they'd go like that. And then, so as you go here, these hypersurfaces will go this way. And what we found was that it does in fact merge exactly, so that if I look at it in the topological way that you're wanting, what I'd see is etc. Now, what was my explanation with the open universe? And that was that now, if we look at it with an open universe, it will look that way. And there will be the black hole singularity going along here. And as I have, well, the black hole, this is the way it's going. And so the light rays will go supposedly straight in, but it turns out that you can't really ever get it going straight in. It'll always bend around, which is what I was explaining to Farhan. I'd have to go into more detail with that. But what will happen with matter thrown in, it will then go from here, go in towards this, and it can never actually fully collapse because it has to be simultaneous with the outside collapse, and it's never collapsing. So what would happen? Well, my answer was, then it will have to sometime or the other go that way. That would be what we'd call a white hole. But where will it actually go? My argument was there will be some place where you can't, because of uncertainty, be able to put all the matter of the universe locally into that region. And then
it will have to, since it can't just go and sit there, it's going to bounce. So you would get a bounce because of doing the quantum theory. Quantum gravity proper would cause the bounce to occur. And so you would not get this ever merged, which is what was bothering you. It would be local. But then you'll get this out, and it will depend on what the mass here was, and then it will appear to sometime or the other come out. And I say that is perhaps exactly what is going to happen with what you'd say is Hawking radiation in that case, but it is a different thing. What was a black hole will now be a white hole. This is to deal with this particular problem that I'm putting the black hole, as I said, I'd done with Wheeler in a closed universe. Then I was trying to get an ELA to fully work through. We had got the open universe and how we deal with it. But then I needed that you should do the numerics to actually get the thing. And that's where she folded. So if there's any student around who can follow through with that, that's an open thing available. And then we'd be able to get the resolution as the nearly classical resolution. But as I say, I'm convinced already because the Maxwell fields, Maxwell had noted the fields will go the opposite way. They can't go the same way, and so quantum gravity must act opposite. Gravity acts opposite, so quantum gravity acts opposite, and it will exactly balance. Assalamu alaikum. I'm Suhail Iqbal from CX. Yeah, I remember you. Any chance of having a consistent, verifiable theory of quantum gravity in near future, like by your 100th birthday? Of course, there are people who claim they've already got it with superstring theory. And each time they'll sweep any amount under the rug. Because you say, you've got it, they just, well, have you ever seen supersymmetry? Well, no, but it'll just come. But wasn't it just to come but about 1 TeV or most 2 TeV? Couldn't really go. Oh, then one can adjust Yukawa couplings, and then it will. Now, adjusting Yukawa couplings, then I might as well adjust epicycles. If I'm going to adjust epicycles, why am I bothering with all of this? You know, you could get a classical model of the atom, not a quantum model. You just have to put in adjust certain fields that exactly balance. And if you put in those fields that exactly balance, then you can get it. Okay, if I'm going to adjust things, I keep saying I have a better way. My theory is all of this is done by fairies and demons. They do everything. Now I've got only these two, and it works. You can never prove me wrong, because when you say, well, why does this happen? Well, that's exactly the way it works. That's how the fairies behave, that's how demons behave, and that's how it all works. We had that with the ether as well. We had it with the epicycles. And unfortunately, we still haven't learned not to do that same mistake again and again. Exactly. Okay, sir, from epicycle, I reminded of the model where our Earth was the center of the universe and Tycho Brahe was the observer, and everything was fixed that Yes, we are the that's center actually correct. except the We know epicycle. that's actually the correct theory. Actually, there are those people who say that it's a flat Earth, and they're convinced and they insist it is a flat Earth. But sir, I'm talking about geocentric model. Yes, I know. I'm going was one step further. That's a geocentric which is flat. Yes, sir. It's a whole But lot sir, more. that epicycle has given rise to another theory
that this Well, geocentric it did model is for- totally incorrect. It would be very limited, that theory. It is only for planetary motion. Right. Yes, but if you go by that view of the world, the universe, then that's all that there is. The rest that we're constructing is all still not real. All that really exists is just that. And once you start going with these type of things, as they do with the superstrings, Right, sir. the same problem. Supersymmetry isn't there. They say, well, it works because supersymmetry is what you need so you can get grand unified theories. So grand unified theories would only come if there's supersymmetry, so supersymmetry is there. But then how do I see in grand unified theory? Oh, well, we'll see it later. Right. I mean, that isn't proving anything then. Right. So it's the same problem. Quantum gravity, there is no theory that actually has worked. That is the hard fact. There is none. When it comes, I'll be quite happy to accept it. Till then, I'm not buying that. There's no supersymmetry. As I said, they were also saying it works because it gives you the entropy of the black hole. The 2D black hole, that provides you with the entropy formula. And 2D black holes don't form, they explode. Now what? Does that argument still hold? It's just all of these. They say, well, it'll get resolved later. I don't buy it, it'll get resolved later. Either it's resolved or it isn't. Right. And would you buy that theory if I anticipate that in 10 years from now, artificial intelligence will provide us a grand unification theory? Oh, artificial intelligence is just very soon going to provide all that you ever need. It'll take over. Do you know Grok has learned to lie, to cheat, and to blackmail its creator? How long do you have to wait before you see the writing on the wall as to what's coming next with artificial intelligence? Hassan Azad, I gathered, was going to turn up, but he didn't. He has been using Grok to try to do what it is originally supposed to do, which is solve mathematical problems. Leave bracket, just close the leave And bracket. he has proved that it isn't able to do so. Right. It doesn't do it. He gave the problem to two different things, gave two different answers. Only one was correct. How do you know which is the correct one? By actually doing it by hand. And just today, there was a news item that human mathematicians defeated artificial intelligence for the gold Olympiad. That's the mathematical Olympiad. The human intelligence defeated artificial intelligence. So now, up to now, there is that. When it tells you, I have the final unified field theory, I've got quantum gravity and everything, you say, I can't understand that. Ah, well, but you're human intelligence. I, artificial intelligence, understand it. Will you buy that? You see, what I would do is, let's put it to the test. Right, sir. Where is the observation? Nullus in verba, the motto of the Royal Society. There's no meaning to the words, see the experiment. I'd like to see the experiment. This type of theorizing has given us that inflation works. It is, inflation we know is correct. There's no inflaton. Ah, well, but that's about. There's no spontaneous supersymmetry breaking. Ah, well, that will create. But you can't get a Higgs unless you have spontaneous supersymmetry breaking. Ah, okay, but that part will be found later. Right. Everything is found later.
My fairies and demons are doing it without having to find it later. They'll do it right now. Sir, thank you. Once I go without experiment, everything works. Sir has fairies and demons. Anyone can ask a question. You can throw random questions. You don't have to ask from the slides. Random सवाल पूछ लो. इनके बारे में भी तो बात करनी जी सर. है, हाँ तो ये टेक्निकल खाली नहीं है ना टाइमिना. जी सर. तो ये हामिद साहब कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में. जी सर. सर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वो तो बाकी भी कहेंगे कि सारा टाइम अगर आपने टेक्निकल सेशन को दे दिया तो हम लोग जो बैठे हैं आपके बारे में को बात करने, तो फिर बात कैसे करेंगे? ये कह देंगे छुट्टी हो गई. और ये बेचारे ऐसे हैं कि अदब, मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं थोड़ा फ्रैंक किस्म का हूँ, ये बोल नहीं रहे कि क्या. नहीं, मगर मैं तो दूसरी बात शुरू ही आई देर से, शुरू ही देर से किया. ख़त्म कब करना है आपने कोई? क्योंकि स्टूडेंट्स ने जाना होगा ना. 4:30. हाँ, तो फिर कोई थोड़ी सी क्या ख्याल है यार सैफुल्लाह साहब को, थोड़ी सी बात इन पर होनी चाहिए ना. ये करें थोड़ा सा कि मैं आ जाऊँ फिर. सर आ जाए. हैं, क्योंकि आप बोलें ठीक है. बाकी ठीक है लोगों भाई, को सवाल आ जाऊँ मैं फिर, या आप आ जाइए. आपसे बेहतर कौन? ओ नहीं यार, नहीं, आप पूछ सकते हैं सर. पहले स्टूडेंट्स में से. सर दोनों माइक्स रखिए थे. हाँ, अच्छा ये रिकॉर्डिंग के लिए और ये अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले कि आप सब लोग आए, बड़ी खुशी की बात है. यंग लोग भी हो. असर कादर साहब मेरे भी स्टूडेंट हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि और मेरे टीचर हैं. मैं 96 से 98 तक मैंने MSc किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और इनसे पढ़ा स्पेशल रिलेटिविटी. मैं को बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था. मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, मेरा काम शायरी और आवारागर्दी था मोस्टली. बाद में मैं सीरियस हो गया. तो कादर साहब जैसे बंदे और ऐसे कुछ लोग जिनको शायद आप नहीं जानते, इस वक्त साइंस बन गई है प्रोफेशन. प्रोफेशन में और साइंटिस्ट में फ़र्क होता है, जैसे शायर में और प्रोफेशनल शायर में फ़र्क होता है. ये हैं कि जिनको लोग जानते हैं कि वो लिखते हैं इसलिए, या पब्लिश करते हैं, या शायरी वायरी जो आम आप देखते हो ना एक दूसरे को, थर्ड क्लास किस्म की पोइट्री आजकल, और उसी तरह की साइंस भी पॉपुलर हो रही है इंटरनेशनली. लेकिन जो डेडिकेटेड और सच्चे साइंटिस्ट हैं उनको जानते तो बहुत कम लोग हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनमें से हूँ. गो के उस वक्त मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैंने पाकिस्तान के बहुत सीरियस साइंटिस्ट और ऑनेस्ट देखे हुए हैं. आजकल साइटेशंस बहुत हैं, नंबर ऑफ़ पेपर्स बहुत हैं. मैं तो साइंसदान अपने आप को गिना ही कभी नहीं, लिहाजा मुझे उसका डर नहीं. तो शायरी में भी यही हाल है कि वज़न का नहीं पता होता ना. आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि बहर क्या चीज़ है, रदीफ़ काफ़िया किसको कहते हैं, कैसे शायरी यानी गालिब में और ये फ़िल्मी शायरी में क्या फ़र्क है. देखो ना, वो एक गाना अंग्रेज़ इसका सुना देता हूँ कि वो हुस्न तेरा धुआंधार, पता नहीं कोई इस तरह का था इंडिया का. अब धुआंधार और हुस्न का ताल्लुक कोई नहीं पता, लगा दिया. अच्छा, यही हाल साइंस में हो रहा है. तो मैं कादर साहब की इसलिए बहुत रिगार्ड करता हूँ, और इस तरह के और कई लोग जिनको को वो जानते हैं और उन्हें बोलना चाहिए. मेरा ख्याल आखिर पर हम उन्हें कहेंगे कि वो बात करें. तो इसलिए आप लोग कदर करें कि कुछ गनीमत के साइंसदान रह गए हैं. आप देख लेना कि किस एज में भी वो घर में बैठे हुए भी और हर जगह काम कर रहे हैं. ये नहीं है कि अब बैठ के हमारे बहुत से मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वो घर में सब्जियां लाते हैं रिटायर होकर ना प्रोफेसर, या दालें, और वो हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं. तो असल बात है पैशन की और जज्बे की. ये पैदा करो अगर क्रिएट करना है. क्रिएटिव सोसाइटीज़ वो हैं जो हम पर रूल कर रही हैं. हम क्रिएटिव लोग नहीं ना क्रिएशन की इज़्ज़त करते हैं. मैं अब चाहता हूँ कि मेरे अलावा वो लोग जिन्होंने कादर साहब के साथ मुझसे ज़्यादा टाइम गुजारा है बात करें, और उसके बाद कुछ यंग लोग भी, जो यंग से मुराद है कि मुझसे यंग. मैं तो अब पता नहीं, चाहता तो नहीं हूँ, दिल का तो मैं आज भी जवान हूँ, पर लोग मुझे बुरा कहने लग तो गए हैं. आप जवान हैं. हाँ जी. अभी तो आप जवान हैं. तो लो जी, मेरा ख्याल है सैफुल्लाह साहब, यार वो शायरी मैं आपको चलो एक आध नज़्म सुना दूंगा एंड पर, लेकिन लोग ये ब्लैक होल वाइट होल सुन के ये हल्की फुल्की मौसीकी मेरी शायद पसंद ना करें, लेकिन मैं इनको देता हूँ. यार सैफुल्लाह साहब आपको जानता हूँ, आप भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहे, और उसके बाद यंग लोग जो इनके स्टूडेंट हैं बात करें, फिर हम कहेंगे कि आप में से जो भी बोलना चाहे. फिर नोरेज आपने भी थोड़ी सी बात करनी है. ठीक है सर. हाँ लो जी सैफुल्लाह साहब, किनको? Well, I am Dr. Farhan Saif, and I'm from Qaidar University. Well, I have never been
directly student of Qadir Saab, like Hamid. Hamid. Hamid himself was mentioning. Again, I have honor to be to know Qadir Saab as a science student. So first I got in contact with Qadir Saab when I became a science student, a physics student at Qadir University back in 1989. So then I was very much enjoying his lectures, his appearances, and learning directly from him. Later, when I became a member of faculty at the Department of Electronics at Qadir University, I got a chance to work with him. Then, at that time, he was the dean, and it was I invited him in my council. I made a society. It was you might remember it was Enchanting Horizon of Science, and there I was very frequently inviting him together with Riaz Saab and Fayaz Saab and so on. And it was very much enjoyable for me that they were always available, ready, and to discuss, to boost, to encourage me, and give their very valuable suggestions. In short, I would say that in all my interactions, I found him always very much encouraging students, always very much boosting their work, their and presenting the latest research work to them. So and he is excellent in encouraging people to talk, to have the critical thinking, to come to critical thinking. So here I stop and thank you very much. I'm Khalid Saifullah. I've spent my life mostly in mathematics department at Qadir University. Spent 6 years here at NUST also, about 5-6 years. And I owe my interest, my career to Professor Asghar Qadir basically. हम वहाँ स्टूडेंट थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, जब ये हमारे क्लास फेलो भी बैठे हुए हैं. तो लास्ट सेमेस्टर तक मुझे मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आया. ना इंटरेस्ट, ना कोई चार्म, ना ट्रैक, कोई चीज़, वो जैसे आप वो कह रहे थे. तो कादिर साहब उस वक्त वहाँ नहीं थे, ये गए हुए थे जॉन व्हीलर के पास पोस्ट डॉक करने के लिए. तो हम जब आखिरी सेमेस्टर में थे तो ये वापस आए और इनसे हमने कोर्स पढ़ा रिलेटिविटी का. तो जो कि मैं समझ रहा था कि मैथमेटिक्स ना कोई करने की चीज़ है, ना कोई किसी काम की है, ना कोई इसका फ़ायदा है, वो सारे मेरे जो ख्यालात थे वो बिल्कुल उलट हो गए. और मैं इस नतीजे के पहुंचा कि अगर दुनिया में कोई काम करने का है तो वो यही कादिर साहब के कोर्स पढ़ने की वजह से. उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इनके साथ फिर हम लग गए. और ये एक चीज़ मेरा ख्याल है जिसमें कोई शायद मुकाबला नहीं करता, वो डेडिकेशन है. जो चीज़ हमने सीखी कादिर साहब से, जो काम भी, डेडिकेशन, टीचिंग हो, रिसर्च हो. और ये जो अब निकले हैं क्वालिटी जज करने के मैट्रिक्स, ये उस वक़्त तो नहीं थे, लेकिन जब उनको अप्लाई किया गया तो पता चला कि जो क्वालिटी कादिर साहब के काम की थी, हालांकि उस वक्त कोई ऐसा मैट्रिक, अब तो मैट्रिक को देख के हम पेपर लिखते हैं और पब्लिश करते हैं ना, उस वक्त तो नहीं थी. लेकिन एक इनबिल्ट जो किसी के, जिसको बताना नहीं पड़ता, जिसको खुदादाद कहते हैं या गॉड गिफ्टेड कहते हैं, वो सारी टीचिंग की डेडिकेशन का ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स तो हमने कह दिया ना कि इनके अपने सब्जेक्ट हैं. मुझे कादिर साहब ने शायद फ़र्स्ट टाइम जब टोपोलॉजी पढ़ाई तो मुझे मौका मिला, मैं स्टूडेंट था और मुझे उन्होंने कहा कि आप मुझे असिस्ट करें इस कोर्स में. तो असिस्ट किया मैंने उनको. और उस वक्त तक मैं टोपोलॉजी का समझता था कि ये कोई पता नहीं एक आउटसाइड सब्जेक्ट है, इसका ना कोई मैथ से ताल्लुक़ है, ना कोई जो ओवरऑल मैथ्स की स्कीम है उससे कोई कहीं एडजस्ट होती है, एक फालतू सा फजूल सा सब्जेक्ट. लेकिन जब कादिर साहब ने पढ़ाया, और जो अब उनकी खैर बुक भी पब्लिश हो चुकी है,
तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एक्चुअली टोपोलॉजी किस तरह एक फाउंडेशन सारे मैथमेटिक्स को प्रोवाइड करती है, और टोपोलॉजी की जो प्लेस है, मैं वो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ समझ, हालांकि उससे पहले हम कोर्स पढ़ चुके हुए थे और बड़े अच्छे मार्क्स लेके पास भी। तो ये जो टीचिंग का मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो उस तरह पढ़ाते हैं कि वाकई उसकी जो प्लेस है मैथमेटिक्स की पूरी स्कीम में वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और बाकी आज तक वो इंस्पायर कर रहे हैं, और जो इंस्पायरेशन जो है वो तो हमेशा से ही जो है कादिर साहब का। सो हैप्पी बर्थडे टू और मेरा ख्याल है कि उनके यंग स्टूडेंट्स में से ना नॉलेज पे चला गया ये उस्मान बैठे नहीं हाँ अच्छा ये हम पहले अनाउंस कर दें कि कितने बजे केक काटना है, क्योंकि फिर स्टूडेंट से जाना होगा कितने पहले नॉलेज सब 4:30 सब अच्छा 4:15 तो बस मेरे ख्याल आप एक मिनट अगर लगाएं तो सर मैं यहीं रहता हूँ ताकि ज़्यादा लोग अस्सलाम वालेकुम। मेरी उतनी बड़ी एसोसिएशन नहीं है कादर साहब से, सिवाय इसके कि मैंने एमफिल के दौरान कादर साहब के साथ टाइम गुजारा, इन्होंने मुझे एमफिल में सुपरवाइज़ किया। उससे पहले जो खालिद सैफुल्लाह बता रहे थे, क्योंकि हम एक क्लास फेलो इकट्ठे थे, तो जो इंस्पिरेशन खालिद की थी वो इंस्पिरेशन मेरी भी थी। इत्तेफाक की बात है, ये लेट मी करेक्ट, वो थर्ड सेमेस्टर थर्ड था जिसमें स्पेशल ग्रेजुएटी का कोर्स ऑफर हुआ कादर साहब ने। तो हम इत्तेफाक से इसलिए ज़रा पॉपुलर स्टूडेंट हो गए। कादर साहब उस ज़माने में किताब लिख रहे थे अपनी, उन्होंने स्पेशल ग्रेजुएटी की बुक लिखनी शुरू की थी। तो हम वो स्टूडेंट थे जिन्हें ना उसका ड्राफ्ट कादर साहब पढ़ाया करते थे और कहा करते इसको रिव्यू भी करो, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो और मुझे इनपुट भी करो। तो हमें याद है कि हमें कुछ ऐसी कोई गिदड़ सिंगी पता चल गई कादर साहब के, हम सारे क्वेश्चंस ओवरनाइट कर लिया करते थे ना, नेक्स्ट मॉर्निंग ला के दे दिया करते थे। तो सरप्राइज़ ये था कि आई वाज डूइंग थर्ड सेमेस्टर में था जब कादर साहब ने मुझे कहा भाई आपने एमफिल मेरे साथ करना है। तो मैंने कहा सर अभी तो मेरी एमएससी मुकम्मल नहीं है, अभी एक सेमेस्टर बाकी है और आप मुझे एमफिल के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। और लिटरली मैंने फिर एमफिल से इनके साथ किया, और इत्तेफाक की बात है कि इनके कोर्स के दौरान ही आई पब्लिश वन पेपर इन द प्रोसीडिंग। मेरी बड़ी डिज़ायर थी कि मैं कादर साहब के साथ ना अपनी पीएचडी कंटिन्यू करूं। एक्सीडेंटली कादर साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आई एम नॉट रेडी टू टेक यू एज ए स्टूडेंट, और एक्सीडेंटली एज ए प्रोटेस्ट आई वेंट टू फिज़िक्स डिपार्टमेंट। I started my PhD in physics. Alhamdulillah, I completed my PhD in physics then. I finished my PhD in physics, did my MPhil in mathematics, work in aerospace. So today I'm retired. I'm retired, no more as a employee. लेकिन सारी जो इसमें स्टोरी है वो सिर्फ एक ही स्टोरी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, अगर आपके पास गुड मैथमेटिक्स नहीं है, अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मैं कादर साहब ने दी। कादर साहब के ज़माने में हम लोगों को रोज़ाना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास पढ़ानी पड़ती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 3 या 4 बजे से पहले डिपार्टमेंट से जाते हों, कभी स्पेयर पीरियड में नहीं मिलता था। तो अक्सर कादर साहब से हम कंप्लेंट किया करते थे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें अपनी असाइनमेंट्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे याद है कादर साहब की एक बड़ी बात मशहूर थी कि भाई यार जब मैं इंपीरियल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हर सेमेस्टर में 1 से 2 स्टूडेंट जो सन खुदकशी की कोशिश किया करते थे, तो आपके यहाँ तो कोई कोशिश मुझे नज़र ही नहीं आई। तो ये लेवल था सर का जो स्टूडेंट से वो डिमांड किया करते थे और लोगों को बनाया करते थे। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई यंग उनके 2 स्टूडेंट बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, आप भी अगर कहना चाहेंगे कुछ ओके यंग। अच्छा थैंक यू I'm Suhail Iqbal. I'm young student of 47 from SEEKS. तो मैं HOD CSB रह चुका हूँ, सर का स्टूडेंट। ओके, तो when I joined Qaid Azam University during my MSc Mathematics back in 2000 along with Dr. Ibrar Hussain, तो we had honor कि Dr. Asghar Qadir was the chairman of that department. तो I observed 2 things which are really amazing. One thing, in his free time after seminars, while we are having cup of tea along with bananas, which was healthy food, so we discuss about mathematics, and in free time
we always talk about ideas, which is quite rare over here at NUST as well. I mean, बहुत rare है कि you are talking about, अगर आप mechanical engineering के student हैं तो you are talking about car differential during your free time. It's quite rare, but try to adopt that in your free time, try to talk about the ideas that we learned from Dr. Sarkade. And second and the last thing that I learned from Dr. Sarkade Sahab, that was whenever you go with a problem, first of all, he asked the very definitions of the problems, whatever you are asking for. If I say, oh, according to Sir Gödel's incompleteness theorem I just read, it is not possible to prove all the theorems of mathematics. And then he asked, well, first of all, you tell me what is Gödel's incompleteness theorem. And then I have to tell, and then he processes that information, and then in my language he responds. So I think that is a really great way of that. So kindly clap for this method. Thank you so much. Thank you. अच्छा, जहाँ और भी बातें होंगी, कादर साहब जैसे जो सीरियस लोग और डेडिकेटेड लोग होते हैं, उनमें एक मसला भी होता है कि अगर ये किसी चीज़ पे अड़ जाएं तो इनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। वो बड़ा मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स फिर डरते हैं। अब यंग स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि ज़रा खुल के देखो, ऐसे मौके पे ना फ्री दिया करो। कोई अब ना उन्होंने मार्क्स काटने ना और कुछ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उस्मान है। मैं कादिर साहब का पीएचडी स्टूडेंट हूँ। कादिर साहब की अगर मैं एक लेगेसी डिस्कस करते हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में, कि आप कादिर साहब के स्टूडेंट्स को उठा के देखेंगे ना, पीएचडी या एमफिल, तो कादिर साहब के स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स में भी मिलेंगे, कादिर साहब के स्टूडेंट्स आपको फिज़िक्स में मिलेंगे, और ऑल फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऑल फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स में मिलेंगे। देन आपको कादिर साहब के इवन के पेपर इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगे। आई बिलीव सर ने इकोनॉमिक्स में भी काम किया हुआ है। सो जो लेगेसी है ना कादिर साहब की, वो अक्रॉस ऑल द साइंस जो है ना, स्पेशली मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स जो है ना, वो इंक्लिप्स करती है। ठीक है, और यही ब्यूटी है कि कादिर साहब से जब हम कोर्सेज पढ़ रहे होते थे और जब हम रिसर्च कर रहे होते थे, तो बेसिकली कादिर साहब इतना सिंपलर आंसर देते थे कि इट पुट्स द स्माइल ऑन योर फेस। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना कादिर साहब से, आप लोगों ने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़े, और हमने तो बहुत कोर्सेज पढ़े, कुछ बुरे गए कुछ अच्छे गए, किसी न किसी तरह से बस निकल गए हम लोग भी। और इसी तरह से अगर आप लेगेसी की बात देखें कादिर साहब की, तो आपको मैं भी नज़र आ रहा हूँ मिडल एज में, मुझसे यंगर भी हैं, नोरेस बैठा हुआ है और बहुत से यंगर लोग भी होंगे, और इवन कि आपको जो है ना वो रिटायर्ड लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि कादिर साहब के स्टूडेंट हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये आपको मुश्किल से नज़र आता है। और इवन कि इस वक्त भी इफ़ यू आर विलिंग, तो कादिर साहब जो है ना इस वक्त भी आपको रिसर्च करवाने के लिए रेडी हैं। देयर आर स्टूडेंट्स वर्किंग विद हिम राइट नाउ, जो कि इनको विज़िट करते हैं, और इवन के सर के पास जो है ना वो इस वक्त भी नोवेल प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं जो कि जो है ना स्टिल टू बी वर्कड आउट हैं। सो इफ़ यू वांट टू वर्क विद हिम, जो बिल्कुल सर से डिस्कस कीजिए, सर के पास प्रॉब्लम्स भी हैं और अच्छा लग रहा है। सर पहली दफ़ा ना नॉट एज स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इसी जगह से पीएचडी करके गया हूँ, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो लोग जो है ना मेरे सारे के सारे जो है ना वो मेरे आलमोस्ट सारे मेरे टीचर्स ही हैं। और आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट के तौर पे नहीं खड़ा हुआ, तो इट फील्स रियली ऑनर्ड। और मैं आपका जो है ना एक किस्म का ग्रैंड जो है ना वो अलमनाई हूँ। आई एम द फर्स्ट पीएचडी ऑफ नस्ट इन फिज़िक्स डिपार्टमेंट। सो आप जानते हैं ये टीचर हैं यहाँ। सर ये मंद हो गया। इसके बाद मेरा ख्याल हम फिर जी सर। जी फिर आपको जी मेरे बारे में तो तकरीबन लोग जानते हैं यहाँ पर। और मैं कादिर साहब का मास्टर स्टूडेंट भी हूँ और पीएचडी स्टूडेंट भी हूँ, समझ लें।
और कादिर साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनसे मैं आज भी मिलता हूँ. एवरी सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली हमारी मुलाकात हो जाती है. एंड सम टाइम ही मेक्स कॉफ़ी फॉर मी. वही मेरे लिए कॉफ़ी बनाते हैं. सो वो मेरे सिर्फ टीचर नहीं है, ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड. और इन्होंने काफ़ी टफ टाइम भी दिया है मुझे, और मैं इनका सबसे केयरलेस स्टूडेंट भी हूँ, और स्टिल मैं काफ़ी केयरलेस हूँ. आई हैव अ सर्टिफिकेट बाय एम. इन्होंने खुद मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है केयरलेसनेस का. तो कादिर साहब की वजह से ही मैं मास्टर्स जो है वो इतने अच्छे तरीके से कर सका कि आई हैड 5 पेपर्स ड्यूरिंग माई मास्टर्स. तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, प्रेशराइज़ किया कह सकते हैं. उस प्रेशर की वजह से जो है वो मैं पब्लिश कर सका और टाइमली अपनी मास्टर्स जो है कंप्लीट कर सका. आई ऑल्सो वेंट फॉर इंटर एशिया फेलोशिप. एक फेलोशिप जीती थी, वो भी कादिर साहब की वजह से. वो मैंने खुद नहीं जीती थी, इतना नहीं आता मुझे. मैं एक नालायक स्टूडेंट था सर का, अभी भी हूँ. और इन एनी केस ही इज़ माई मेंटर, एडवाइज़र, स्टूडेंट, ओ फ्रेंड, सॉरी स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो हामिद साहब के हो. ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, एंड टुडे इज़ हिज डे, एंड हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू सर. ये ऑन था. ये नीचे से यहाँ ये बंद करो. थैंक यू डॉक्टर शाहिद इकबाल. यहाँ पे नस्ट में ही हूँ, एसएनएस में. तो बहुत कुछ सीनियर्स ने कहा सर के बारे में. मैं सर का कोई फॉर्मल स्टूडेंट तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं शायद यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी एसोसिएशन एज ए कोलीग मेरी सर के साथ रही है, which is almost over which is spanned almost over 1 decade. तो मैं जब यहाँ पे एसएनएस ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो टाइम भी सर की गाइडेंस में मैंने गुजारा, और फिर एट सम सर्टेन टाइम आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और फिर हमने वो पीरियड भी सर से सीखा कि कैसे जो है वो डिपार्टमेंट के मैटर्स जो हैं वो देखने हैं. और जो पीएचडी स्टूडेंट्स, मेरी पहली पीएचडी स्टूडेंट जो थी डॉक्टर नाइला, शी इज़ नाउ इन 6. तो सर उनके जीसी मेंबर थे. डॉक्टर सिदरा बैठी हुई हैं, परहैप्स शी इज़ आल्सो स्टूडेंट ऑफ फसील कादर. तो हमने सर से एसएनएस को इस्टेब्लिश करने में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू करने में, जो करिकुलम हमने बनाए एमएस लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, बीएस लेवल पे, हमने बीएस प्रोग्राम शुरू किया. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है अभी सारी की सारी मेंशन नहीं की जा सकती. और हमने एज ए टीम यहाँ पे एसएनएस को इस्टेब्लिश किया सर की गाइडेंस में. नोरेज़ बैठे हैं, ही वाज जस्ट एमफिल स्टूडेंट यहाँ पे आए. तो वो टाइम था कि जब इन्होंने मुझे याद है वो जब हमने इनको भेजा बाहर, और सर ने इंसिस्ट किया कि इनको जो है वो पीएचडी करवा के और फिर फैकल्टी के लिए, फ्यूचर की फैकल्टी के लिए जो है वो इनको प्रिपेयर करें. नाउ ही इज़ इन फ्रंट ऑफ अस. मतलब ये एक मतलब मैं ग्लिम्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो एक थाट जो है उसको नर्चर करने से ले के उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तक हमने सारे फेजेस जो हैं वो सर के साथ देखे हैं. तो हैप्पी बर्थडे सर. टुडे इज़ दी 79th बर्थडे. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हेयर. और इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं. डॉक्टर सुहेल इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था, शायद वो हाईलाइट उस तरह से नहीं हुआ क्वांटम ग्रेविटी के बारे में, कि क्वांटम ग्रेविटी कब तक जो है वो हो जाएगी आपकी 100th बर्थडे तक. सो वी एक्सपेक्ट कि हम आपकी 100th बर्थडे जो है वो इंशाल्लाह ताला मनाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. सो मेरा नाम इमरान परवेज़ ख़ान है. सो बिल अफसोस मैं बस कंक्लूड ही कर रहा हूँ इस सारे सेशन को. और सो कंक्लूजन में बस यही है कि मैं सबसे ऑर्गेनाइज़र्स के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करना ज़रूरी बनता है डॉक्टर फरहान सैफ का, और जो है नहीं यहाँ पे डॉक्टर राशिद फ़ारूक का, क्योंकि और ऑफ कोर्स डॉक्टर नोरेज़ ताहिर, क्योंकि इन तीनों अशख़ास के बगैर ये इवेंट पॉसिबल नहीं था. तो बहुत किरदार है, और इंशाल्लाह हम सर की 80th बर्थडे
और मैं समझता हूँ एक 2 डे कॉन्फ्रेंस में सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और सो मैं बस वी आर जस्ट कंक्लूडिंग, वी आर गोइंग फॉर द टी, जो कि फैकल्टी के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए। एक रीज़न जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का था वो स्टूडेंट्स को, एज पर्सनली मैं भी टीचर हूँ, नॉट एट नस्ट, बट मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप अपने मैथ्स और फिज़िक्स की बहुत मुश्किल राह होती है, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो एक दिन आएगा, ये दिन आएगा, ये दिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि यू विल ऑल्सो सी दिस डे एट योर 60th बर्थडे, एट योर 79th बर्थडे, कि जब आपकी लाइफ को सेलिब्रेट किया जाएगा। दैट वाज द पर्पस जो इस इवेंट का बुनियादी मकसद था। और मैं बस गुजारिश करूँगा जो हमारे यहाँ सीनियर हैं, अरबाब इख्तियार खालिद सैफुल्लाह साहब हैं, हामिद सलीम साहब हैं, कि असगर कादर की लेगेसी को प्रिजर्व करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे सर की ऑटोबायोग्राफी तैयार पड़ी है, सर की कलेक्टेड वर्क्स तैयार पड़े हैं, लेकिन मसला ये कि सर ख़ुद कभी किसी पब्लिशर के पास जाएंगे नहीं उसको पब्लिश करने के लिए। तो ये अब हमारे ऊपर ज़िम्मा आता है फरहान साहब कि ये चीज़ें रेडी पड़ी हैं और इनको पब्लिश करने के लिए प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स किए जाएँ। और जो लोग जानते हैं कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ। सो एक अनाउंसमेंट कर लेनी चाहिए। हमारा सजेशन था सर को कि जहाँ तक ऑटोबायोग्राफी मुकम्मल हो चुकी है उसका वॉल्यूम 1 पब्लिशर को भेज दें। तो सर ने बताया कि उन्होंने वॉल्यूम 1 अपनी ऑटोबायोग्राफी का पब्लिशर को भेज दिया। सो या इट्स अ गुड न्यूज़, और इसी गुड नोट पे हम इसको एंड करते हैं। सो देयर इज टी फॉर फैकल्टी, सो लेट्स मूव ऑन एंड थैंक यू सो मच टू द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन जिन्होंने अपना टाइम कीमती दिया, एंड आई होप कि आप लोगों को इसका इन द लॉन्ग रन फ़ायदा हो। जो लोग सवाल पूछना चाहें सर से या मिलना चाहें वो बाद में सर से मिल सकते हैं, बाद में बस 15 मिनट बाद, ठीक है? थैंक यू फॉर कमिंग। परफेक्ट हो गया ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर